Okay, so the question was a rigid insulated wire frame in the form of a right angle triangle ABC is set in vertical plane as shown in the figure. Alright, so it's a vertical plane plus it is a right rigid insulated frame. Now, right rigid insulated frame, we understand that Q1 when it is touched to the frame wire of AB, the charge on Q1 will not transfer to the wire AB because it is insulated. Okay, now after that, two beads of equal masses Q1 and Q2 carrying charge Q1 and Q2 are connected by a cord of length L. This length is L and can slide without friction on the wire. There is no friction, so that means we don't have to consider forces parallel to the surface of the wire part AB and part BC. So then the beads become stationary. Stationary clearly means equilibrium, और equilibrium में हमें पता है what we do is हम सिर्फ और सिर्फ forces का net sum zero कर देते हैं. That's what we are going to do in this question. So the first part is find the angle alpha. Angle alpha is the angle made by Q2 with the arm BC. So I've drawn the FBD for this particular question over here. This is the FBD of both parts, and this is after breaking into components. This part is after breaking into the components over here, and this is just the FBD. Now for Q2 I have chosen my axis or my reference system in this direction. This is Y and this is X, and for Q1 I have chosen my direction system as this one. Okay, that means Q1 पे जितनी भी forces होंगी मैं उनके directions जब तोड़ूंगा वो इन directions में तोड़ूंगा सब forces के, और जितनी भी forces Q2 पे होंगी उनकी जो forces के components टूटेंगे forces के वो इस direction में टूटेंगे हमारे. Done. Let's try list down the forces on Q2. Q2 will have an force mg downwards, so this mg acts downwards. ये mg नीचे लग गया. Along the thread एक F लगेगा on 2 due to 1. This F2 due to 1 ये यहाँ लगा हुआ है. Perpendicular to the surface BC एक normal जाएगा, वो हमने N2 बनाया हुआ है. Also, since they are joined by a cord Q2 को पीछे की तरफ खींचेगी, मतलब Q1 की तरफ खींचेगी, तो एक टेंशन T हमने लगा दिया यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन ये होगा. उसके बाद mg का एंगल हमने देखा फ्रेम के साथ क्या बनेगा. mg का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, सॉरी, फ्रेम का एंगल जो है हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ वो है 60 डिग्रीज. दैट मीन्स mg का फ्रेम के साथ 30 होगा दिस एंगल. सो हमें एक फोर्स का अपनी एक्सिस के एक एक्सिस के साथ एंगल पता लग गया. सो वी कैन ब्रेक द कंपोनेंट्स. सिमिलरली हमें पता है कि BC के साथ जो Q1 Q2 को लाइन ज्वाइन कर रही है उसका एंगल अल्फा बन रहा है. सो दिस इज एंगल अल्फा, एंड अगर मैं नॉर्मल को पीछे प्रोड्यूस करता हूं तो ये टोटल एंगल जितना बनना था हमारा यहाँ पे टोटल एंगल अल्फा प्लस ये जो बना हुआ है ये 90 होना चाहिए टेंशन का. सो अल्फा के अलावा जितना बचेगा दैट विल बी 90 माइनस अल्फा. ये 90 माइनस अल्फा हो गया. सिमिलरली ये जो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में एंगल होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा. दैट विल आल्सो मेक एंगल 90 माइनस अल्फा. मैंने सब एंगल्स लिख लिए, सारे फोर्सेस लिख लिए. अब सारे फोर्सेस को आप इसके कंपोनेंट्स में तोड़ दो. mg का कंपोनेंट टूट जाएगा अलोंग द x डायरेक्शन mg cos 30. mg का कंपोनेंट टूट जाएगा आपका माइनस y डायरेक्शन में mg sin 30. ये वाला N2 आपका सामने ही रहेगा, वो अलोंग द एक्सिस ही है एक. F21 का आपका N2 के अलोंग टूटेगा विच इज y डायरेक्शन F21 sin अल्फा. और एक आपका टेंशन का कंपोनेंट टूटेगा अलोंग नॉर्मल विच विल बी T sin अल्फा. और बाकी आपके परपेंडिकुलर प्लेन में लग जाएंगे mg cos 30, T cos अल्फा एंड F21 cos अल्फा. सो दिस Q2 here it will be in equilibrium. हम अपनी एक्सिस के अलोंग सारे फोर्सेस का नेट सम जीरो कर सकते हैं. that will be more than enough. तो हमने वही किया कि T cos अल्फा
will be equal to upper force should be equal to downward force. तो downward force लिख दे F21 cos alpha plus mg cos 30 degrees. So यहाँ से हमारे को ये इक्वेशन मिल जाता है, यहाँ से हमने टेंशन निकाल लिया. Now हम लोगों ने N2 और N2 और हमारा mg sin 30 और t sin alpha को हमने बैलेंस आउट नहीं किया, क्योंकि हम एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस केस में N2 जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमें वेरिएबल कम से कम रखने थे, तो हमने ऐसे किया. सिमिलरली वी कैन राइट फॉर Q1 फोर्सेस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं सारी फोर्सेस एंगल्स के साथ. तो हम देख सकते हैं कि जो Q1 पे फोर्सेस लग रही हैं, ओके, उसके अंदर भी हमें N1 तो नहीं लेना होगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएगा हमारे इक्वेशन में. सो वी विल राइट ऑल द इक्वेशन पैरेलल टू द सरफेस. तो पैरेलल टू द सरफेस इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन लिख दी कि ऊपर वाले फोर्सेस इस डायरेक्शन के फोर्सेस शुड बी इक्वल टू नीचे वाले डायरेक्शन के फोर्सेस, तभी इक्विलिब्रियम होगा. तो ऊपर वाले के फोर्सेस में t का कंपोनेंट तोड़ेंगे, t का टूटेगा t cos 90 माइनस अल्फा विच इज t sin अल्फा. सो राइट हैंड साइड में फोर्स हो गया t sin अल्फा. लेफ्ट हैंड साइड में F21 का हमारा F12 का कंपोनेंट टूटेगा. F12 जो हमारा इधर है, F21 का हमारा कंपोनेंट टूटेगा. F21 का कंपोनेंट टूटेगा F21 cos 90 माइनस अल्फा विच इज सॉरी F12 cos 90 माइनस अल्फा, सो विच इज F12 sin अल्फा. mg का अलोंग दिस लाइन दोबारा से टूटेगा. ये एंगल अगर 60 है तो mg का भी इस डायरेक्शन में टूट जाएगा, mg cos 60. सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे दो फोर्सेस बनते हैं, राइट साइड में एक बनता है, इक्वेट कर दिया. ना हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक Q2 से आया है, एक Q1 से आया है. दोनों में से टेंशन को एलिमिनेट कर दो, टेंशन को इक्वेट कर दो, हमें इक्वेशन मिल जाएगा F12 plus mg cos 60 by sin alpha. This comes out from equation 1 directly is equal to F21 plus mg cos 30 by cos alpha. It comes from equation number 2 directly. ये वाला यहाँ से आया, ये वाला आया from equation 1. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाता है 30 डिग्रीज. अल्फा कम्स 30 डिग्रीज. So this part is done. Okay.